ایک شریف نوجوان جسے قدم قدم پر سنگسار کیا گیا۔ ظالم معاشرے کی ناانصافیوں، کرپٹ پولیس اور دولت مند بدماشوں نے اسے بھی ایک غنڈہ بننے پر مجبور کر دیا، اور جب ایک شریف انسان جرائم پیشہ بن جائے تو وہ سب غنڈوں سے زیادہ خطرناک ہو جاتا ہے۔ ایک بدقسمت نوجوان جسے جرم کی دلدل نے ایک آتش فشاں بنا دیا۔ بدلے کی آگ میں جلتے ایک شریف نوجوان کی کہانی۔ دفتن سمینا کی آنکھ کھل گئی۔ کھنڈر کے باہر کسی جگہ پر بندھے ہوئے گھوڑے ہنہنا رہے تھے۔ لگتا تھا جیسے وہ کسی چیز سے ڈر گئے ہوں اور رسے تڑوا کر بھاگنا چاہتے ہوں۔ پتھریلی زمین پر ان کے سم مارنے کی آوازیں یہاں تک سنائی دے رہی تھیں۔ سمینا بدحواسی ہو کر ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ گل رحمان اور شارق بھی جاگ گئے تھے، جبکہ دوسرے لوگ اب بھی گہری نیند میں تھے۔ گل رحمان نے سمینا کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، کیا ہوا؟ یہ گھوڑے کیوں بدک گئے ہیں؟ سمینا ہکلائی، پتہ نہیں، میری آنکھ بھی انہی کے شور سے کھلی ہے، شاید کسی چیز سے ڈر گئے ہیں۔ ٹھیک اسی لمحے بازط خان دوڑتا ہوا کھنڈر میں داخل ہوا۔ وہ گل رحمان کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، غضب ہو گیا خان۔ وہ بری طرح بدحواس ہو رہا تھا۔ گل رحمان ایک جھٹکے سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا، بولا، کیا ہوا؟ بازط خان نے کہا، کچھ لوگوں نے اس کھنڈر کو چاروں طرف سے گھیر لیا ہے، پتہ نہیں وہ حکومت کے آدمی ہیں یا کسی مخالف پارٹی کے۔ گل رحمان نے پوچھا، ان کی تعداد کیا ہے؟ بازط خان بولا، پتہ نہیں، میرا خیال ہے 30-35 تو ہوگی۔ دوسرے آدمی بھی ان کی آواز سن کر بیدار ہو گئے تھے۔ نولکھا بھی جاگ گیا تھا۔ ان سب نے اپنی اپنی رائفلیں سنبھال لیں۔ گل رحمان چیخا، خبردار، تم میں سے کوئی بھی گولی نہیں چلائے گا۔ ان کی تعداد ہم سے زیادہ ہے اور ان کے پاس ایمونیشن بھی وافر مقدار میں ہوگا۔ اگر ہم نے مقابلہ کرنے کی کوشش کی تو وہ لوگ ہمیں بھون کر رکھ دیں گے۔ شارق بولا، تو کیا ہم اپنے آپ کو ان کے حوالے کر دیں؟ گل رحمان نے کہا، ہاں، ایسا ہی کرنا پڑے گا۔ ایسی صورت میں ہمارے لیے بچت کا کوئی راستہ نکل سکتا ہے۔ وہ حکومت کے آدمی ہوں یا مخالف پارٹی کے، ہماری کسی سے دشمنی نہیں ہے۔ ہم تو مسافر ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ وہ ہمارے ساتھ دشمنوں جیسا سلوک نہیں کریں گے۔ کسی نے کچھ نہ کہا۔ نولکھے کا چہرہ دھواں ہو رہا تھا۔ سمینا کے چہرے پر بھی ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ اس نے بے بس نگاہوں سے آسمان کی طرف دیکھا۔ رات کی تاریکی چھٹ رہی تھی اور بہت ہلکا سا اجالا پھیلنے لگا تھا۔ باہر سے کوئی آدمی چیخ کر درری زبان میں کہہ رہا تھا، ہم نے تم لوگوں کو چاروں طرف سے گھیر لیا ہے، اپنے ہتھیار پھینک کر ایک ایک کر کے باہر آ جاؤ۔ اگر مزاحمت کی کوشش کی تو تم میں سے کوئی بھی زندہ نہیں بچ سکے گا۔ وہ سب لوگ ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے اور پھر گل رحمان نے اپنی رائفل زمین پر پھینک دی اور دونوں ہاتھ بلند کر کے کھنڈر کی شکستہ چار دیواری سے باہر نکل گیا۔ اس کے پیچھے جانے والا ملک فیروز تھا۔ شارق نے سمینا اور نولکھے کو اشارہ کیا۔ وہ بھی اپنی اپنی رائفلیں پھینک کر کھنڈر سے باہر نکل آئے۔ سمینا شارق کے پیچھے تھی۔ اس نے دونوں ہاتھ سر سے اوپر اٹھا رکھے تھے۔ کھنڈر سے باہر آتے ہی اس نے دائیں بائیں درختوں کی آڑ میں کھڑے ہوئے 2 افغانوں کو دیکھ لیا۔ ان دونوں کے ہاتھوں میں سب مشین گنیں تھیں۔ 2 آدمی کھنڈر کی دیوار کے بالکل قریب کھڑے تھے، ان کے ہاتھوں میں بھی سب مشین گنیں تھیں۔ سمینا رک کر پیچھے دیکھنا چاہتی تھی، لیکن دائیں طرف کھڑے ہوئے آدمی نے درری زبان میں چیخ کر کچھ کہا اور سمینا آگے بڑھ گئی۔ خوف سے اس کی ٹانگیں کانپ رہی تھیں۔ وہ لوگ ایک دوسرے سے پشت ملائے ایک چھوٹے سے میدان میں ایک دائرے کی صورت میں بیٹھے ہوئے تھے۔ سب کی ٹانگیں آگے کو پھیلی ہوئی تھیں اور ہاتھ گھٹنوں پر رکھے ہوئے تھے۔ ان کے چاروں طرف 5-6 آدمی کھڑے تھے جنہوں نے ان سب کو مشین گنوں کی زد پر لے رکھا تھا۔ ان کی تعداد 22 تھی۔ ان کے پاس سب مشین گنوں کے علاوہ لائٹ مشین گنیں اور مارٹر گنز بھی تھیں۔ ایک آدمی کے پاس راکٹ لانچر بھی تھا جسے کندھے پر رکھ کر چلایا جا سکتا تھا۔ راکٹ صرف 2 تھے، البتہ ایمونیشن ان کے پاس بہت تھا۔ مختلف کیلیبر کے کارتوسوں کے کئی ہار ہر ایک کے گلے میں پڑے ہوئے تھے۔ ان میں سے 5 تو گل رحمان اور اس کے ساتھیوں پر پہرا دے رہے تھے اور باقی ان سے ذرا ہٹ کر ایک درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے تھے۔ یہ تو انہیں دیکھنے کے فوراً ہی بعد اندازہ ہو گیا تھا کہ ان کا تعلق حکمران پارٹی سے نہیں تھا۔ وہ حکومت کی کسی مخالف پارٹی سے تعلق رکھتے تھے اور ان کا لیڈر ایک ایسا شخص تھا جس کی داڑھی 2 بالشت سے بھی بڑی ہوئی تھی اور اس نے سیاہ کپڑے پہن رکھے تھے۔ سر پر بھی سیاہ امامہ بندھا ہوا تھا۔ اس وقت سورج طلوع ہو چکا تھا اور دھوپ پھیل رہی تھی۔ شارق نے اپنی جگہ سے حرکت کیے بغیر گل رحمان کو مخاطب کرتے ہوئے اس سے کوئی بات کرنا چاہی تھی، مگر ایک پہرے دار نے اسے بری طرح ڈانٹ دیا تھا کہ وہ خاموش بیٹھے رہیں۔ گل رحمان نے گردن گھما کر پہرے دار کی طرف دیکھا، بولا، ہم لوگ خاموش نہیں بیٹھے رہ سکتے۔ تم لوگ کون ہو؟ ہمیں اس طرح پکڑ کر کیوں بٹھایا ہے؟ ہم تو مسافر ہیں، ہمارا کسی پارٹی سے کوئی تعلق نہیں۔ کالے لباس والے نے گل رحمان کی بات سن لی۔ اس نے محافظ سے کچھ کہا اور محافظ ان کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، ٹھیک ہے، تم پوزیشن بدل کر آرام سے بیٹھ سکتے ہو، لیکن کوئی گڑبڑ کرنے کی کوشش مت کرنا۔ گل رحمان اور اس کے ساتھیوں نے ٹانگیں سمیٹ لیں۔ اس نے شارق وغیرہ کو بھی بتا دیا کہ وہ بھی سیدھے ہو کر بیٹھ جائیں۔
वो तकरीबन 1 घंटे तक इस पोजीशन में बैठे रहे, जिससे उनकी टांगें अकड़ कर तख्ता हो गई थीं। अब वो रुख बदल कर एक दूसरे के सामने बैठे हुए थे। शारिक बोला, ये लोग क्या चाहते हैं? हमें इस तरह क्यों बिठा रखा है? इससे पहले कि गुल रहमान कोई जवाब देता, स्याह लिबास और लंबी दाढ़ी वाला अपने ग्रुप में से उठकर उनके करीब आ गया। उसके साथ ही 2 आदमी और भी थे। एक तो उसकी तरह दाढ़ी वाला था और दूसरा बिल्कुल नौम्र था। उसकी तो मसें भी भीगी नहीं थीं। उसने कंधे पर सब मशीन गन लटका रखी थी। काले लिबास वाला गुल रहमान और मलिक फिरोज से बातें करता रहा। कभी वो बहुत गुस्से में आ जाता और कभी उसके लहजे में नरमी आ जाती। स्याह लिबास वाले ने कहा, हम जानते हैं कि तुम लोगों का हुक्मरान पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन ये 3 गैर मुल्की जासूसों की मौजूदगी तुम लोगों को मुश्तबा बना रही है। गुल रहमान बोला, ये गैर मुल्की जासूस नहीं हैं, ये अखबार नवीस हैं और इनका ताल्लुक पाकिस्तान से है। ये लोग यहाँ से वापस जाकर अखबारात में लिखेंगे कि यहाँ क्या हो रहा है, मुजाहिदीन किस तरह जालिम हुक्मरानों का मुकाबला कर रहे हैं। स्याह लिबास वाले ने बारी बारी शारिक, समीना और नौलखे को घूरा। बोला, लेकिन इनके पास तो कैमरे नहीं हैं। गुल रहमान बोला, 3 रोज पहले एक गिरोह ने इन्हें पकड़ लिया था। वो इनके कीमती कैमरे और दूसरा सामान लूट कर ले गए। इत्तेफाक से कल शाम ये लोग हमें मिल गए, हम इन्हें अपने साथ ले आए हैं। दाढ़ी वाले ने कहा, लेकिन ये काबुल का रास्ता तो नहीं है। गुल रहमान बोला, हम इन्हें बराकी तक अपने साथ ले जाएंगे, वहां से इन्हें काबुल के लिए कोई बस वगैरह मिल जाएगी। दाढ़ी वाले ने पूछा, तुम लोग कहाँ से आए हो और कहाँ जाना चाहते हो? इस मर्तबा गुल रहमान की बजाय मलिक फिरोज ने जवाब दिया। बोला, हम लोग पलंदर खान के आदमी हैं और बराकी की तरफ जा रहे हैं। दाढ़ी वाले ने उसे घूरा। बोला, पलंदर खान तो सईदाबाद में है, तुम लोग बराकी क्यों जा रहे हो? मलिक फिरोज ने कहा, हम लोग दरअसल कई रोज पहले एक काम से सुरखाब की तरफ गए थे। वापसी पर रास्ते में पता चल गया कि सईदाबाद में जंग हो रही है, इसलिए हम कल शाम को यहाँ रुक गए थे। अब हमारा इरादा बराकी जाने का है। 1-2 रोज वहाँ रुकने के बाद सईदाबाद की तरफ रवाना हो जाएंगे। दाढ़ी वाले ने कहा, ठीक है, तुम लोग आराम से बैठे रहो, मैं अपने साथियों से मशवरा कर लूं, उसके बाद तुम लोगों के बारे में कोई फैसला किया जाएगा। वो वहां से हटकर अपने साथियों के पास चला गया। 10 बज गए। उन लोगों ने अभी तक कुछ भी नहीं खाया पिया था। उसके बरक्स उन्हें अपना कैदी बनाने वाले कहवा बनाकर पी चुके थे और उनके सामान में रखा खुश्क गोश्त भी तल कर चट कर गए थे और इनसे पूछा तक नहीं था। शारिक ने गुल रहमान से पूछा, क्या इनका ताल्लुक किसी पार्टी से है? मलिक फिरोज ने कहा, इनका ताल्लुक किसी भी पार्टी से नहीं है। ये वो लोग हैं जो इस किस्म के हर मौके से फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। हुकूमत कमजोर होती है तो हर शख्स उसके खिलाफ उठ खड़ा होता है। सियासी पार्टियां तो सरगर्म होती ही हैं, इस किस्म के लोग भी उठ खड़े होते हैं। अफगानों में इस वक्त कोई कानून नहीं है, जिसका जो दिल चाहता है कर रहा है। यहाँ लातादाद गिरोह बन चुके हैं जो अपने आप को इस मुल्क के मुहाफिज और मुजाहिदीन कहते हैं। दर हकीकत ये लोग लुटेरे हैं, छोटी छोटी बस्तियों में लूट मार करते फिर रहे हैं। बस्तियों के निहत्ते लोग इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। वो इनसे डरते हैं, लेकिन जब कोई बड़ा गिरोह मुकाबले पर आता है तो ये भाग खड़े होते हैं। शारिक बोला, लेकिन इनके पास तो जदीद तरीन हथियार हैं, रॉकेट लॉन्चर, लाइट मशीन गन्ने, मार्टर गन्ने, सब मशीन गन्ने, हैंड ग्रेनेड और मिसाइल। ये असलहा इनके पास कहाँ से आ गया? गुल रहमान बोला, अफगानिस्तान जैसे मुल्क में असलहे का हुसूल कोई मसला नहीं है। जब रूसी फौजें यहाँ से वापस गई थीं तो वो अपने पीछे जगह जगह असलहा और बारूद का अंबार छोड़ गई थीं। लोगों ने ये असलहा अपने घरों में छुपा लिया। बहुत सा असलहा पाकिस्तान की तरफ स्मगल हो रहा है और बहुत सा यहाँ एक दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल हो रहा है। हुकूमत को भी मालूम नहीं है कि यहाँ आम लोगों के पास कितनी कसीर मिकदार में गोला बारूद मौजूद है और ये लोग, उसने उन लोगों की तरफ इशारा किया, इन्हें भी कहीं से ये गोला बारूद मिल गया है और ये लोग अपने आप को मुजाहिदीन समझ बैठे हैं। इनका ख्याल है कि सिर्फ यही लोग अफगानिस्तान को गासिबों से निजात दिला सकते हैं, जबकि दर हकीकत ये लुटेरे हैं। शारिक ने कहा, हमारे साथ ये लोग क्या सलूक करेंगे? गुल रहमान बोला, हमने इन्हें बताया है कि तुम तीनों पाकिस्तानी अखबार नवीस हो। 3 दिन पहले किसी गिरोह ने तुम लोगों को लूट लिया था और कैमरे वगैरह छीन कर ले गए थे। तुम लोग हालात का जायजा लेने के लिए काबुल जाना चाहते हो। कल तुम लोग हमें मिल गए थे और हमने तुम्हें बराकी तक ले जाने की पेशकश की थी, जहां से तुम लोग काबुल चले जाओगे। शारिक बोला, लेकिन अगर इन्होंने हमें न छोड़ा तो? मलिक फिरोज ने कहा, खुद तो ये लोग लूट मार पर गुजारा कर रहे हैं, इनके पास अपने खाने को कुछ नहीं है। तुम लोगों को कैदी बनाकर कहां से खिलाएंगे? ये लोग आपस में मशवरा कर रहे हैं, मेरा ख्याल है हम सबको छोड़ देंगे। शारिक ने उलझी हुई निगाहों से उसकी तरफ देखा। बोला, हो सकता है तुम लोगों के बारे में इनकी राय मुख्तलिफ हो, लेकिन अगर इन्होंने हम तीनों को न छोड़ा तो? गुल रहमान ने कहा, इन्हें शायद अभी तक ये मालूम नहीं हो सका कि हम में एक औरत भी मौजूद है। अगर पता चल गया होता तो वो समीना को हमसे अलग कर चुके होते। मैं समीना बीबी को मशवरा दूंगा कि वो अपने आप को इनकी निगाहों से बचाने की कोशिश करे। गुल रहमान ने जिन नजरों से समीना की तरफ देखा था वो झेंप सी गई।
उसने अपना जिस्म ढीला छोड़ दिया। उसके बाद वो कोशिश करती रही कि अपने आप को नुमाया न होने दे। 11 बज गए। उन नाम नेहाद मुजाहिदीन की तवील मीटिंग खत्म हो गई। लंबी दाढ़ी वाले ने ऐलान किया कि मुजाहिदीन ने उनके हक में फैसला किया है। वो लोग चाहें तो अपनी मंजिल की तरफ जा सकते हैं। उन सब के मुंह से बेइख्तियार गहरे सांस निकल गए। उनकी राइफलें वापस कर दी गईं, अलबत्ता फालतू घोड़े वापस नहीं किए गए। राशन खत्म हो चुका था। ये मुजाहिदीन सब कुछ चट कर गए थे। इन लोगों से निजात मिलते ही वो लोग घोड़ों पर बैठकर वहां से रवाना हो गए। समीना ने खुदा का शुक्र अदा किया था। अगर उन्हें पता चल जाता कि वो औरत है तो शायद सूरत हाल मुख्तलिफ होती। वो लोग रुके बगैर सफर करते रहे। घोड़ों की रफ्तार भी तेज थी। वो लोग उन नाम नेहाद मुजाहिदीन से ज्यादा दूर निकल जाना चाहते थे। 3 बज रहे थे। गर्मी और भूख प्यास से उन सब की हालत अबतर हो रही थी। घोड़ों के जिस्म भी पसीने से शराबोर हो रहे थे। वो दरिया से हटकर दूसरी तरफ निकल गए थे। चट्टानों के दरमियान तंग रास्ते थे जिनसे वो गुजर रहे थे। एक जगह उन्हें घोड़ों से उतर जाना पड़ा। एक तरफ उमूदी चट्टान थी और दूसरी तरफ सैकड़ों फुट गहरा खड्डा। उमूदी चट्टान के साथ तकरीबन 5 फुट चौड़ी कार्नस सी बनी हुई थी। उन्हें उसी रास्ते से गुजर कर जाना था। यह कार्नस तकरीबन 80 फुट लंबी थी। उसके बाद कुशादा रास्ता था, लेकिन 80 फुट का यह फासला पुल सिरात से कम न था। पहले अमानुल्लाह और मलिक फिरोज आगे बढ़े। वो अपने घोड़ों की लगामें पकड़कर पैदल उस तंग सी पट्टी पर चल रहे थे। उनके बाद शारिक अपने घोड़े को लेकर आगे बढ़ गया और उससे तकरीबन 10 फुट का फासला देकर समीना घोड़े की लगाम थामे उस कार्नस पर चलने लगी। उसने एक हाथ से घोड़े की लगाम पकड़ रखी थी और दूसरे हाथ से चट्टान का सहारा ले रखा था। उसका दिल बड़ी शिद्दत से धड़क रहा था। उसने एक बार नीचे झांक कर देखा तो उसे अपना दिमाग घूमता हुआ सा महसूस हुआ। वो चट्टान का सहारा लेकर खड़ी हो गई। उससे तकरीबन 10 फुट के फासले पर गुल रहमान आ रहा था। समीना ने गर्दन घुमाकर उसकी तरफ देखा और फिर आगे चलने लगी। उसने 20 फुट का फासला और तय कर लिया। चट्टान पर चंद फुट ऊपर झाड़ियों में किसी परिंदे ने घोंसला बना रखा था। परिंदा अचानक ही फड़फड़ाता हुआ घोंसले से उड़ा तो समीना का घोड़ा बिदक गया। समीना भी बदहवास सी हो गई। घोड़ा हिनहिनाता हुआ पिछले पैरों पर खड़ा हो गया। लगाम समीना के हाथ में थी और वो उसे खींचने की कोशिश कर रही थी, लेकिन घोड़ा बुरी तरह बिदक गया था। वो चलता हुआ पीछे की तरफ हट रहा था। उसका पिछला एक पैर किनारे के एक पत्थर पर पड़ा। पत्थर ने अपनी जगह छोड़ दी। घोड़ा खड्ड के किनारे पर नीचे की तरफ फिसलने लगा। उसकी लगाम अब भी समीना के हाथ में थी और लगाम के साथ वो भी खड्ड की तरफ खिंचती चली जा रही थी। उसके चेहरे पर बेपनाह खौफ था। समीना, लगाम छोड़ दो। ये गुल रहमान के चीखने की आवाज थी जो समीना की समात से टकराई। गैर इरादी तौर पर समीना की गिरफ्त ढीली पड़ गई और लगाम उसके हाथ से फिसलती चली गई। घोड़ा हिनहिनाता हुआ खड्ड में गायब हो गया। समीना खड्ड के किनारे से सिर्फ 2 फुट के फासले पर खड़ी थी। उसका दिमाग चकरा गया था। उसे यूं लग रहा था जैसे ये बुलंद पहाड़ उसके चारों तरफ बड़ी तेजी से घूम रहे हों। उसने सर को दोनों हाथों से थाम लिया और उसकी टांगें कांप रही थीं और फिर वो नीचे झुकती चली गई। गुल रहमान सबसे करीब था। वो अपने घोड़े की लगाम थामे तेजी से आगे बढ़ा। उसने एक हाथ से घोड़े की लगाम थामे रखी और दूसरे हाथ से समीना को पकड़कर किनारे से पीछे खींच लिया। समीना का चेहरा खौफ की शिद्दत से बिल्कुल सफेद पड़ गया था और उसकी आंखें फटी पड़ रही थीं। सांस धूकने की तरह चल रहा था। गुल रहमान ने उसका कंधा थपथपाते हुए कहा, घबराओ नहीं, सब ठीक है, अपने आप पर काबू पाओ समीना बीबी। समीना को अपनी कैफियत पर काबू पाने में तकरीबन 2 मिनट लग गए। वो उठकर खड़ी हो गई। गुल रहमान ने उसका एक हाथ पकड़ रखा था और उसे चट्टान की तरफ रख कर आहिस्ता आहिस्ता चलने लगा। शारिक उनसे चंद गज आगे था। यह हादसा पेश आने पर वो भी रुक गया था। अब वो भी आगे चल पड़ा। आधे घंटे बाद वो सब लोग एक कुशादा जगह पर जमा थे। समीना के चेहरे पर अब भी खौफ था। थोड़ी देर वहां रुकने के बाद वो नशेब में उतरने लगे। समीना शारिक के साथ घोड़े पर सवार थी। तकरीबन 1 घंटे बाद वो एक चश्मे पर पहुंच गए। यहाँ चंद सायादार दरख्त भी थे। घोड़ों से उतरते ही उन्होंने पानी पिया और दरख्तों के साए में गिर गए। 1 घंटे से पहले किसी के हवास बहाल नहीं हो सके थे। चंद घंटों के इस सफर ने उन सबको बुरी तरह निढाल कर दिया था। और फिर मलिक फिरोज का ये इंकिशाफ भी बड़ा सनसनीखेज साबित हुआ कि वो लोग असल रास्ते से भटक गए थे। वो रास्ता भटक कर ही इन दुश्वार गुजार पहाड़ों की तरफ निकल गए थे, जहां एक हादसे में उन्हें एक घोड़े से भी महरूम होना पड़ा था। लेकिन बहरहाल अब परेशानी की कोई बात नहीं थी। दरियाए लोगर वहां से ज्यादा दूर नहीं था। वो लोग दरिया के साथ साथ चलते हुए ज्यादा से ज्यादा 3 घंटों में बराकी पहुंच जाएंगे। और जब वो दरिया की तरफ रवाना हुए तो उस वक्त भी वो ज्यादा बेहतर हालत में नहीं थे। भूख से उन सब के पेट में गिरहें सी पड़ रही थीं। उन्होंने कल शाम को खाना खाया था। सुबह ये लोग उन नाम नेहाद मुजाहिदीन के कैदी बन गए थे जो कि उनका सारा राशन चट कर गए थे।
और ये लोग भूखे रह गए थे। इस पड़ाव पर बार बार चश्मे का पानी पीने से मतली सी हो रही थी। तकरीबन 1 घंटे बाद वो लोग दरिया के किनारे पर पहुंच गए। जहां भी उन्होंने पानी पिया, खाली पेट पानी पीने से नौलक्खे को कै हो गई थी। वो सबसे ज्यादा निढाल हो रहा था। उसकी वजह से उन्हें तकरीबन आधा घंटा वहां रुकना पड़ा। समीना और शारिक एक ही घोड़े पर सवार थे। घोड़ा भी बहुत बुरी तरह थक गया था। उसके चलने की रफ्तार भी हल्की हो गई थी। 2 घंटे मुसलसल चलते रहने के बाद वो लोग एक बार फिर दरिया से दूर हटते चले गए। उस वक्त अगरचे शाम का अंधेरा फैल चुका था, लेकिन अब उनके भटकने का कोई अंदेशा नहीं था, क्योंकि वो एक बाकायदा रास्ते पर चल रहे थे और ये पथरीला रास्ता जाहिर है किसी न किसी बस्ती की तरफ ही जाता होगा। ये रास्ता मुसलसल बुलंदी की तरफ जा रहा था और बिलाखिर वो एक जगह रुक गए। सामने नशेब में बहुत दूर चंद मध्यम सी रोशनियां नजर आ रही थी। अमानुल्लाह उन्हें बता रहा था, ये करमबाद है। उसके कहने के मुताबिक ये गांव तकरीबन 200 घरों पर मुश्तमिल था। इससे तकरीबन 1 घंटे की मुसाफत पर बराकी नामी कस्बा है, जहां उन्हें जाना है। एक पक्की सड़क करमाबाद से बराकी तक चली गई है। उन्हें आगे सफर करने में कोई दुश्वारी पेश नहीं आएगी। वो नशेब में पथरीले रास्ते पर उतरते रहे और बिलाखिर तकरीबन आधे घंटे बाद करमाबाद नामी बस्ती में पहुंच गए। शारिक वगैरह को ये देखकर हैरत हुई कि उस बस्ती में आबादी बहुत कम थी। बेशतर मकान तारीकी में डूबे हुए थे। गलियों में भी इक्का दुक्का लोग ही नजर आ रहे थे। अमानुल्लाह का घोड़ा सबसे आगे था। वो लोग मुख्तलिफ गलियों में चलते हुए एक छोटी सी दुकान के सामने रुक गए। दुकान भी उजड़ी पड़ी थी। दुकानदार के अलावा 2 आदमी और भी वहां बैठे हुए थे। वो लोग मुश्तबा नजरों से उन घुड़सवारों की तरफ देखने लगे। अमानुल्लाह ने उनमें से एक आदमी की तरफ देखते हुए कहा, क्या तुम मुल्ला नसीरुद्दीन के घर तक हमारी रहनुमाई कर सकते हो? वो आदमी बोला, आओ मेरे साथ, और उठकर गली में एक तरफ चल पड़ा। 2 गलियां घूमने के बाद वो एक मकान के सामने रुक गए। मकान का दरवाजा हवेली के फाटक की तरह था। अमानुल्लाह ने उस शख्स का शुक्रिया अदा करके उसे रुखसत कर दिया और घोड़े से उतरकर दरवाजा खटखटाने लगा। सन्नाटे में लोहे का दरवाजा खटखटाने की आवाज दूर तक गूंज गई थी। शारिक वगैरह भी घोड़ों से उतर आए थे। समीना मकान की दीवार के साथ टेक लगाकर बैठ गई। उसकी कमर तख्ती की तरह अकड़ गई थी और उसके लिए टेक लगाए बगैर बैठना या खड़े रहना मुश्किल हो रहा था। थोड़ी ही देर के बाद दरवाजा खुल गया। वो मुल्ला नसीरुद्दीन ही था। उसकी उम्र 60 के लगभग रही होगी। सफेद दाढ़ी और सर पर सफेद पगड़ी बंधी हुई थी। उसके हाथ में लालटेन थी। उसने लालटेन की मध्यम सी रोशनी में अमानुल्लाह को पहचान लिया। उसने बारी बारी सबकी तरफ देखा और गेट खोल दिया। मुल्ला नसीरुद्दीन ने कहा, मुझे तुम लोगों के बारे में आज सुबह पलंदर खान का पैगाम मिल गया था। आओ अंदर आ जाओ तुम लोग। फिर उसने अंदर की तरफ रुख करके किसी को आवाज दी। 2 लंबे तड़ंगे आदमी दौड़ते हुए वहां पहुंच गए। वो दोनों मुल्ला नसीरुद्दीन के बेटे थे। उन्होंने मेहमानों से घोड़े ले लिए। गेट के अंदर बहुत वसी और अरीज सहन था। एक तरफ अस्तबल भी था। वो दोनों घोड़ों को लेकर अस्तबल की तरफ चले गए और मुल्ला नसीरुद्दीन मेहमानों के साथ मेहमान खाने में आ गया। मेहमान खाना बड़ा वसी और अरीज था। फर्श पर दबीज कालीन बिछे हुए थे और गाँव तकिए पड़े हुए थे। कमरे में 2 ट्यूब लाइटें जल रही थीं। उस बस्ती की बिजली बराकी के बिजली घर से सप्लाई होती थी, लेकिन बिजली की ये सप्लाई रात 10 बजे मुनक़ता हो जाती। रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक लोग अपने घरों में लालटेनें या पेट्रोमैक्स इस्तेमाल करते। मुल्ला नसीरुद्दीन बारी बारी उन सब के चेहरों की तरफ देख रहा था। समीना को देखकर वो चौंक सा गया, लेकिन कुछ न बोला। उसने कहा, मुझे यकीन था कि तुम लोग शाम तक यहाँ पहुंच जाओगे। मैंने खाना तैयार करवा रखा है। तुम लोग हाथ धो लो तो खाना लगवा देता हूँ। उसी वक्त उसके दोनों बेटे भी अंदर दाखिल हुए। मुल्ला नसीरुद्दीन ने दर्री जबान में उनसे कुछ कहा। एक तो अंदरूनी दरवाजे में चला गया और दूसरा बाहर निकल गया। कुछ देर के बाद वो वापस आया तो उसके हाथ में तौलिया था। उसने बारी बारी उनकी तरफ देखते हुए कहा, मैंने बरामदे में पानी रख दिया है, आप लोग मुंह हाथ धो लें। वो लोग बरामदे में आ गए। एक बड़ी बाल्टी पानी से भरी रखी थी। उसमें मग्गा भी था। वो लंबा तरंगा नौजवान मग्गे से पानी डालने लगा और वो लोग बारी बारी मुंह धोने लगे। इस दौरान मुल्ला नसीरुद्दीन के दूसरे बेटे ने कालीन पर दस्तरखान बिछाकर खाना लगा दिया। वो लोग आदाब महफिल को नजरअंदाज करते हुए बेतकल्लुफी से खाना खाने लगे। खाने के बाद कहवे का दौर चला। कहवा पीते हुए मुल्ला नसीरुद्दीन उन्हें बता रहा था कि 3 दिन पहले इस बस्ती पर हुकूमत की मुखालिफ पार्टी के एक दस्ते ने हमला कर दिया था, जिसमें कई लोग मारे गए थे। बहुत से मकानों को भी नुकसान पहुंचा था और अगले ही रोज इस बस्ती की आधी से ज्यादा आबादी बराकी मुंतकिल हो गई थी। शारिक बोला, इसका मतलब है कि हमला फिर भी किसी वक्त हो सकता है। मुल्ला नसीरुद्दीन ने कहा, कोई भरोसा नहीं है। यहाँ तो बहुत ही अजीबोगरीब किस्म की सूरत हाल है। हर शख्स मुजाहिद बना हुआ है। असलहे की कमी नहीं है। जिसका दिल चाहता है गोले दागना शुरू कर देता है। जब इस मुल्क पर रूसी फौजियों का तसल्लुत था तो उस वक्त भी ये इलाका ज़ेरे अताब था।
अक्सर गनशिप हेलीकॉप्टर मुजाहिदीन के ताक़ुब में इस तरफ आ जाते थे। हमने बस्ती के बाहर एक गनशिप हेलीकॉप्टर गिराया भी था, उसका ढांचा अब भी पड़ा हुआ है। इन रूसी हेलीकॉप्टरों ने हमें कभी इतना नुकसान नहीं पहुंचाया जितना ये मुजाहिदीन पहुंचा चुके हैं। अगर यही सूरत हाल रही और खाना जंगी बंद ना हुई तो इस मुल्क में कुछ नहीं बचेगा। मलिक फिरोज ने कहा, बचा तो अब भी कुछ नहीं है, रह ही क्या गया है। अफगानिस्तान की आधी से ज्यादा आबादी तो यहाँ से भागकर पड़ोसी मुल्कों में पनाह ले चुकी है। बहरहाल हमें आज की रात मोहतात रहना पड़ेगा। हम सुबह सवेरे ही यहाँ से रुखसत हो जाएंगे। मुल्ला नसीरुद्दीन ने कहा, हाँ मैं भी चाहता हूँ कि तुम लोग सुबह सवेरे ही यहाँ से निकल जाओ ताकि अगर कोई गड़बड़ हो जाए तो तुम लोग महफूज रहो। उनकी गुफ्तगू ज्यादा देर जारी नहीं रही थी। वो लोग बहुत थके हुए थे, जल्द ही सो गए। समीना एक कोने में दीवार के साथ लगकर सो गई थी। उसके एक तरफ नौलखा था और दूसरी तरफ शारिक। आधी रात के बाद अचानक ही समीना की आंख खुल गई। वो किसी धमाके की खौफनाक आवाज थी।